Hello everyone, good morning. Welcome to our day 8 of our 11th day marathon challenge. In last video, we discussed about the PYQ basics, and in this we are going to discuss about some more PYQ or some MCQs of our Python part 2. Okay, in last part we discussed about the basic, and this part we will discuss Python in more detail. Okay, let's start. Okay, the topic we covered in this video are like control structures, sequence, selections, and repetition functions, why we need of functions, user-defined functions, built-in functions, what do you mean by strings and how to initialize the strings, how to access these strings and the strings operations. And the next topic here is our list and the list operations, and the next part here is the tuples and how we create the tuples, how we initialize the tuples, how we access elements in tuples, and operations we can apply on the tuple. And then we discuss the next data type, this is dictionary, and we discuss dictionary in detail here, the concept and key value pair of dictionary we will going to discuss in detail, and the mutability concept of dictionary, how we create the dictionary, how we initialize the dictionary, how dictionary operations works. Okay, let's start with our first question. Our first question here is, which of the following is not a control structure in Python? Yeah, we all know the control structure in Python are the sequence, selection, and recurrence or iteration. For loop, if else, and the sequences. These are the control structure, but compilation is not a control structure in Python. Next question here is a control structure that executes statements in linear order. Here we are gonna discuss about the control structures which are having the linear order. Okay, जो जो statements को linear order में execute करे. Which one is that? Linear order का मतलब होता है one after another, यानी कि sequence. Is talking about the sequence. ठीक है. Next question here is if else statements. If else statement represent the control structure, and which control structure they are talking about. If they are just telling about if we are using the if else statement, then the control structure related to if else statement is selection. With the help of if else condition, we select is this condition is true or false. Okay, the condition is true, then we run the if statement, otherwise we run the else one statement. Next question here is for loop represent which control structure? For loop की हेल्प से क्या हम सीक्वेंस की बात करते हैं? नहीं. for loop में हम आइट्रेशन को फॉलो करते हैं, रिपीटेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो for loop follow the iteration और repetition. ओके, हमने बात कर ली है कि सिलेक्शन की बात करें तो if else, रिपीटेशन आइट्रेशन for loop. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन. वैलिड की बात करें तो दो टाइप की सिलेक्शन स्टेटमेंट होती हैं पाइथन में जो वैलिड है, इफ एल्स दैट इज द वैलिड वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइट्रेशन स्टेटमेंट इन पाइथन. आइट्रेट करने के लिए पाइथन में हम लूप का यूज करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द आइट्रेशन, आइट्रेशन में हम यूज करेंगे बच्चे लूप का. लूप में यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है हमें, व्हाइल लूप. पाइथन दो ही टाइप के लूप यूज करती है, फॉर और व्हाइल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द व्हाइल लूप इन पाइथन इज से. देखो व्हाइल लूप में पाइथन को एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है. व्हाई वी कॉल्ड इट एंट्री कंट्रोल्ड लूप? क्योंकि ये एंट्री पे कुछ कंडीशन के बेस पे काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8. चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज द टॉप लूप इन सॉरी द फोर लूप इन पाइथन आइटरेट सॉल्व. अगर फोर लूप की बात करें तो यहाँ किसके ऊपर ये आइटरेट करेगा? जब भी आइटरेबल की बात करें, ठीक है, आइटरेबल हो, सीक्वेंस हो, तो वहां पे हम ये वाले डेटा टाइप्स को याद रखेंगे. लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज. इन सभी पे वर्क करता है अपना फॉर लूप. तो ऑप्शन सी इज द राइट वन.
ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर पे करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग पे करेगा, ओनली डिक्शनरी, नॉट लाइक दैट. It work on the iterables or the sequence like list, tuple, string or range. Which of the following is the correct syntax of for loop in Python? For loop in Python का correct syntax की बात करें तो ये तो देखो हमें पता चल रहा है कि प्लस प्लस वाला साइन तो हम पाइथन में यूज नहीं करते, तो ये तो नहीं है. ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 10 ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है उसको एंड शो करने के लिए लास्ट में कोलन का यूज करा जाता है इन फॉर लूप. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन. यहाँ पे लिखा गया है फॉर आई इन रेंज. रेंज बताया कि फॉर लूप आइटरेबल पे काम करता है, तो रेंज आइटरेबल यहाँ पे लिख गई है. 10 तक चलेगा. 10 का मतलब होता है रेंज में, 10 का मतलब है 0 to 9 तक ये लूप हमारा रन करेगा. तो ये तो कुछ कंडीशन ही नहीं दी गई है, तो इट्स ऑल्सो रॉन्ग. ऑन ऑप्शन वन इज द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 10. रेंज 5 की बात करें. रेंज 5 फंक्शन क्या जनरेट करता है? रेंज 5 है, मैंने अभी अभी बताया कि रेंज क्या लेता है, एक इंटीजर नंबर लेता है. रेंज क्या लेता है? एक इंटीजर नंबर लेता है एज ए पैरामीटर. और रेंज अगर 5 है तो ये एक कम चलेगा, बिकॉज रेंज की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट. जब स्टार्ट नहीं दिया हुआ हो तो ये 0 1 2 3 4 तक जाएगा, तो ये 0 to 4. आंसर हेयर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द रेंज 2 to 7 फंक्शन जनरेट्स द नंबर फ्रॉम 2 to 7. देखो यहाँ पे 2 क्या है रेंज में, ये स्टार्ट दे दिया, एंड 7 यहाँ पे क्या दे दिया, एंड. तो रेंज हमेशा एंड से एक माइनस चलता है. एंड यानी एन, एन की जगह कुछ भी नंबर दिया हुआ एंड में, तो वो n-1 कर दो, तो 7 माइनस यानी कि 6 तक चलेगा. स्टार्ट कहाँ से होएगा? 2 से, तो ये 2 to 6 चलेगा. 2 to 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द रेंज 1 10 और 2. अब रेंज में 3 पैरामीटर लेता है रेंज. तो रेंज में स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से. ठीक है, एंड होगा हमारा 10 पे. एंड का मतलब -1 कर दो, तो 9 पे एंड होगा. ठीक है, इसके बाद स्टेप दे दिया. व्हाट इज इट? स्टेप. स्टेप यानी ये कितना कितना स्किप करके चलेगा. स्टेप हियर इज 2. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. स्टार्ट फ्रॉम 1. फिर हमने 2 का स्टेप लिया. 1 के बाद 3 आया, देन 5 आया, देन 7 आया. 2 का स्टेप लेके एंड देन 9. बिकॉज द एंड पॉइंट इज 9, तो सिर्फ 9 तक चलेगा. तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट हियर. ये सी वाला यहाँ पे करेक्ट है. और नेक्स्ट वन हियर इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग द फंक्शन इन प्रोग्रामिंग. कौन सा रीजन है जिनकी वजह से हम फंक्शंस को यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में? जब भी हम बात करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है? मॉड्यूलरिटी को. ठीक है, मॉड्यूलरिटी शो करने के लिए हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं. तो क्या कोड को फास्टर बनाने के लिए? नहीं. तो अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन, बार बार सेम कोड लिखने की बजाय हम एक फंक्शन बना लेते हैं, तो इससे कोड डुप्लीकेशन हमारा हट जाता है और मॉड्यूलरिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज which keyword is defined as the user defined function. यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की गई है पाइथन में. तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए, दैट इज द डेफ कीवर्ड. ऑप्शन सी इज द राइट वन हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन फंक्शन इज पाइथन? बिल्ट इन फंक्शन क्या प्रिंट है, क्या माई फंक्शन है, कैलकुलेट है, या डिस्प्ले? डिस्प्ले इज द बिल्ट इन फंक्शन. अदर बिल्ट इन फंक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस में. which of the following, यहाँ पे प्रिंट इज नॉट ए बिल्ट इन फंक्शन. इन फंक्शंस की बात करी गई है, लेकिन डिस्प्ले है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन का आंसर गलत दिया हुआ है. ठीक है, प्रिंट इज ऑल्सो बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, बट यहाँ पे एक फंक्शन जो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले इज ए फंक्शन जो हम यूज करते हैं. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. डिस्प्ले हम यूज करते हैं ना स्टैक वगैरह में. ठीक है, तो डिस्प्ले भी बिल्ट इन है और प्रिंट भी बिल्ट इन है. ठीक है, दोनों ही बिल्ट इन है. यहाँ पे दोनों ही बिल्ट इन है. एक बार मैं भी इसको चेक करूंगी. ऑब्वियसली प्रिंट तो बिल्ट इन है ही है, तो प्रिंट तो राइट है ही है, और डिस्प्ले भी होना चाहिए यहाँ पे. तो एक बार आप भी चेक करना, मैं भी चेक करती हूँ. और
कमेंट डाउन करना कि आपको क्या मिला आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन पाइथन? इन पाइथन में कौन सा बिल्ट इन नहीं है? लेंथ तो बिल्ट इन है, टाइप भी बिल्ट इन है, इनपुट भी है, ठीक है, बट मेन इज नॉट ए बिल्ट इन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इन द पाइथन। ऐसा एक फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, दैट इज नन। नन मतलब अब्सेंट ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं भाई। चलो, हमारा 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी सुन लेते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन इज यूज्ड टू। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फंक्शंस में कैसे यूज करते हैं? क्या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए? सेंड ए वैल्यू बैक टू द कॉलर, दिस इज द राइट आंसर। हम जिसने कॉल किया है फंक्शन, उस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, कॉलर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कराने के लिए वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू कॉल ए फंक्शन? ठीक है, कॉल सम, क्या हम कॉल लिखेंगे? नहीं नहीं, कॉल वोल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम फंक्शन नेम लिखेंगे और ये फंक्शन वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाएंगे, तो हम अपने फंक्शन को कॉल कर पाएंगे इन ए करेक्ट वे। ओके, ये एग्जीक्यूट, रन, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ फंक्शन तो बहुत बार ही पूछा जा रहा है पेपर्स में। तो लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? लेंथ फंक्शन के अंदर हम जो भी सीक्वेंस पास करते हैं, सीक्वेंस की बात करें तो लिस्ट, टपल, जो भी इटरेबल पास करते हैं, उस सीक्वेंस की लेंथ को हमें रिटर्न करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इम्यूटेबल सीक्वेंस है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस तो है, लेकिन कैसे सीक्वेंस है? इम्यूटेबल। नाम से ही पता चल रहा है, इम मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट में। नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? कि ये चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन here is, this is question number 22, and which of the following is the correct way to initialize the empty string? empty string को अगर initialize करना है तो क्या हम ऐसे कोड्स लिखेंगे, या ये वाला लिखेंगे, या स्ट्रिंग लिख देंगे, स्ट्रिंग फंक्शन लिख देंगे, या फिर हम लिखेंगे ऑल द अबव? तो देखो, ये जो है, कोई भी अगर हमने, तो हमें हमें एक बात पता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं, और खाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और द लास्ट वन इट्स आल्सो द राइट वन। तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट, ठीक है। सभी के सभी तरीके से हम एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन? कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। स्ट्रिंग रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन के लिए स्टार यूज करते हैं, दिस वन इज द करेक्ट वन। एंड द नेक्स्ट वन हियर इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ हेलो? हेलो प्लस वर्ड। तो यहाँ पे देखो, प्लस ऑपरेटर अभी अभी हमने बात करा, ये किस लिए यूज करते हैं? कॉन्केटिनेशन के लिए। कॉन्केटिनेशन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पास पास आ जाती हैं, तो इट विल शो द हेलो वन, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ हेलो स्टार टू? तो ये है एक हमारी, ये क्या दी हुई है? एक सीक्वेंस दी हुई है, और इस सीक्वेंस को हमने एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर ही वैल्यू ले सकते हैं, और ये उतने टाइम जो भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ये उतने टाइम इसको रिपीट करके देता है, दिस इज द रिपीटेशन ऑपरेटर। तो इसने 2 टाइम लिया है, तो ये 2 टाइम हेलो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस ए कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इन पाइथन? कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए पाइथन में क्या हम इंडेक्सिंग विद दिस यूजिंग कैरेक्टर एट मेथड, यूजिंग द गेट मेथड? नहीं, हमें जब भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर एक्सेस करने हैं पाइथन में, तो हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question here is, what is the index of our first character in Python string? Okay,
इंडेक्स ऑफ फर्स्ट करेक्शन, जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ आवर लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. ओके, लास्ट कैरेक्टर क्या होता है जब हम इंडेक्सिंग की बात करें तो क्या लेंथ होता है. जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना तो हमेशा ध्यान रखेंगे 0 से जो स्टार्ट होने वाली चीज है वो लेंथ उसकी जितनी भी होती है, ठीक है, उससे एक कम तक चलती है, तो लेंथ -1. ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है पाइथन में. ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्सिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम -1. अगर सेम पूछा जाए, अगर -1 से स्टार्ट हो रही है पाइथन में इंडेक्सिंग तो एंड कहाँ होगी, वो -n पे होगी, -n पे एंड होगी. लाइक हमारी इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट हुई है और इधर चलती चलती -2 -3 लाइक -9 पे एंड हुई है. ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 9. Next question here is the string indexing s minus 1 refer to. This is also the most important question I will see. I will see s of -1. अभी अभी मैंने बताया कि इंडेक्सिंग पीछे से अगर बैकवर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम -1. तो लास्ट करेक्टर जो है उसकी इंडेक्सिंग होती है हमारी -1. ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्लाइसिंग. ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है पाइथन. अब इस पाइथन को इंडेक्स कर लेते हैं हम. पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे दी हुई है हमें 0 1 2 3 4 एंड 5. अब ये बोला है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से. 0 पे हमारा क्या है, p, देन y. देन हमारे यहाँ पे देखो, हमेशा ध्यान रखना जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है या कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, इट्स ओके. बट इंडेक्सिंग में भी जो स्टार्ट के बाद जो एंड दिया होता है, एंड को हम कंप्लीट ना चला के एंड -1 चलाते हैं. ठीक है, तो ये 3 तक ना जाके 2 तक जाएगा, तो 0 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, 1 वाला और 2 वाला एलिमेंट हमारा क्या है, पी वाई टी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. ध्यान से देख लो, 0 वाला प्रिंट होगा, 1 वाला प्रिंट होगा एंड 2 वाला प्रिंट होगा. तो 0 पे है हमारा P, 1 पे है दिस एंड 2 पे हमारा T. तो ऑप्शन ए इज द राइट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस. तो अगर हम यहाँ से 2 से चले तो हम 2 को प्रिंट करेंगे, 3 को प्रिंट करेंगे, 4 को प्रिंट करेंगे, क्या हम 5 को प्रिंट करेंगे, नहीं भाई. जब भी इंडेक्सिंग की बात है या रेंज की बात है तो लास्ट एलिमेंट को ना प्रिंट करके हम उससे एक कम को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे 4 तक ही प्रिंट होगा. ठीक है, तो 2 3 4 को प्रिंट कर दो. ये 0 है, ये 1 है, 2 2 हमारा स्टार्ट है T से. ठीक है, 3 पे H है. ठीक है, एंड 4 पे हमारा क्या है, 4 पे हमारा O है, THO. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड इन द पाइथन. भाई बोर तो नहीं होंगे हो? देखो पाइथन के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोरिंग तो नहीं है, बोर तो नहीं होना है. पढ़ाई को ध्यान से करो, पढ़ाई तो करना है, हमें कुछ खास तो करना नहीं है. बैठे बैठे ही तो पढ़ रहे हैं, कुछ उठा तो रहे नहीं है सर पे, कुछ हमारे वेट रखा हुआ है कि हम परेशान हो गए, बोर हो गए. हम पढ़ सकते हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है. चलो हम 34th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग मेथड इन द पाइथन. कौन सा वैलिड स्ट्रिंग मेथड है पाइथन में, नॉट वैलिड पूछा, सॉरी नॉट वैलिड. या अपर है, लोअर है, कैपिटलाइज है, टू अपर. यार टू अपर तो कुछ नहीं होता. अपर फंक्शन क्या करता है, सारे लेटर को कैपिटल कर देता है. ठीक है, अपर फंक्शन सबको कैपिटल करता है, ध्यान से सुनो. लोअर सबको वो कर देता है, लोअर केस में कर देता है. ठीक है, छोटे अक्षर में कर देता है. कैपिटलाइज हर वर्ड का फर्स्ट अक्षर को कैपिटल करता है. ठीक है,
तो these three are the valid and this D1 is the invalid. Next question पे चलते हैं बच्चे. Next question here is the split method in Python is used. तो split method Python में हम कैसे use करते हैं? Split method की बात करें तो split का मतलब होता है ये हमें एक तो list return करता है, ठीक है? Split is string into list of substrings. स्प्लिट जो है वो हमें लिस्ट रिटर्न करता है और लिस्ट भी किसकी रिटर्न करेगा? सब स्ट्रिंग्स की, मतलब उस स्ट्रिंग्स के छोटे छोटे पार्ट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन? मुझे लगता है म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने इतना करा दिया, ये तो आप सबको क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे म्यूटेबल पूछा है तो फटाफट आंसर लगाओगे सभी के सभी लिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए लिस्ट इन पाइथन? इज इट द राइट वे? यस, इट्स द राइट वे. इट्स द राइट वे? नो, ये तो सेट दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 38. 38 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट के बारे में बात करा गया है, ठीक है. एम्प्टी लिस्ट अगर हमने करना है तो हम डायरेक्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, वो हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट? दो टाइप से हम लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, वन यूजिंग द अपेंड एंड वन यूजिंग द एक्सटेंड. लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन एलिमेंट यानी सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है, तब हम अपेंड का यूज करते हैं, ठीक है. जब एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हो तो एक्सटेंड का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है. एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लिस्ट में अगर हमने एलिमेंट ऐड करना है तो वी विल यूज द इंडेक्स. और इंडेक्स कहाँ पे देंगे? इंसर्ट पे. इंसर्ट दो वैल्यू लेता है, दो पैरामीटर लेता है, एक तो लोकेशन या इसको पोजीशन बोल दो या लोकेशन बोल दो, सेम ही बात है. और एक वो एलिमेंट जिसको हमने ऐड करना. मान लीजिए हमें थर्ड इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है, ठीक है. और जो वैल्यू ऐड करनी है वो हमारी क्या है? 99. तो हम ऐसे लिखेंगे इंसर्ट थर्ड पे क्या इंसर्ट करो? 99. ओके. तो विंडेक्स की हेल्प से अगर वैल्यू ऐड करनी है तो वी यूज द इंसर्ट फंक्शन इन अवर लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द क्वेश्चन नंबर 41. 41 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई? रिमूव मेथड. रिमूव का काम होता है कुछ भी रिमूव करना. कहाँ से? लिस्ट में से. लिस्ट पे अगर रिमूव लगाएंगे तो रिमूव में देखो वी आ रहा है, तो वी से याद करो रिमूव मेथड में उस एलिमेंट की वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको हमने रिमूव करना है, ठीक है. तो रिमूव में हम वैसे वैल्यू से रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, जो आपको ध्यान से देखना है. क्या? लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट हमें रिमूव करना है, तो हम रिमूव मेथड का यूज ना करके हम पॉप मेथड का यूज करेंगे. कौन से मेथड का यूज करेंगे? पॉप मेथड का, ठीक है. अगर ये लास्ट वर्ड इंक्लूड नहीं करता तो हम सिर्फ रिमूव मेथड ही यूज करते, लेकिन लास्ट एलिमेंट बोल दिया तो पॉप मेथड का यूज करेंगे. इसको स्टार मार्क्स कर लीजिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फंक्शन इज यूज टू रिमूव ए स्पेसिफिक एलिमेंट. देखो मैंने बोला था ना स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू लेता है, दैट इज द रिमूव मेथड. स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू अगर हमने पास करा दी तो ये रिमूव हमारा उसको रिमूव कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 43. Which of the following list operation is used to concatenate? Concatenate कहीं पे भी आ जाए प्लस आंसर लगा दो बिना देखे सोचे समझे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Which of the following list operation is used to repeat a list? कौन से ऑपरेशन है जो लिस्ट में रिपीट करने हैं एलिमेंट को, तो उसको रिपीटेशन बोलते हैं. और रिपीटेशन जहाँ पे भी दिखे वहां पे स्टार स्टार वाला जो आंसर है अपना लगा देंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, which of the which function returns the number of element? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है भाई? कितनी बार बताओगे? लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं. और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. which function used to sort a list in ascending order? This is the important question. स्टार मार्क कर लीजिए.
कि शॉर्टिंग अगर हमने करनी है, शॉर्टिंग का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अगर हमें एलिमेंट चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। शॉर्ट और शॉर्टेड, जब भी लिस्ट डेटा टाइप हो तो उसमें शॉर्ट भी यूज होता है और शॉर्टेड दोनों यूज होते हैं। लेकिन अगर बात करें टपल की, ठीक है, डिक्शनरी की या फिर दूसरे डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग की, तो वहां सिर्फ शॉर्टेड यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट जो है वो सिर्फ हमारा लिस्ट में यूज होता है। लिस्ट में शॉर्ट और शॉर्टेड दोनों, बाकी ये दो तीन बच गए, इनमें सिर्फ शॉर्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए टपल। टपल को क्रिएट करने का कौन सा वे करेक्ट है। देखो, टपल को हमने पहले भी बात किया, टपल को हम पेरेंथेसिस में रखते हैं। किस में रखते हैं? पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होते हैं? वही अपने गोल वाले ब्रैकेट होते हैं ना, इनको पेरेंथेसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर, दिस इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट द एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल, खाली टपल हमें बनाना है, तो क्या हम ये वाला यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज राउंड पेरेंथेसिस। दूसरा, अगर हमने टपल के साथ अगर ये वाला टपल मेथड यूज कर लिया, इससे भी हमारा एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थे इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज आवर 49th क्वेश्चन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टपल्स। टपल्स के बारे में कौन सी बात हमारी ट्रू है? क्या टपल म्यूटेबल होते हैं? नहीं भाई, टपल तो बहुत टिपिकल इंसान है, ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द करेक्ट वे टू क्रिएट ए टपल विद ए सिंगल एलिमेंट। ये बहुत मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगी कि जब भी सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करना है तो सिंगल एलिमेंट दो, उसके बाद कोमा का यूज करो। कोमा का यूज करो, किसका यूज करना है? कोमा का यूज करना है जब हमने सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है। तो इट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अलाउड इन ऑन ए टपल। टपल पे कौन सा नहीं अलाउड है? क्या इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग तो होती है, स्लाइसिंग भी होती है, कॉन्केटिनेट भी हम टपल को कर सकते हैं, बट टपल में चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका टाइप है इम्यूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट आवर क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टपल ऑपरेशन। टपल वन प्लस टपल टू को क्या हम ऐड कर सकते हैं? टपल को हम रिपीट कर सकते हैं, लेंथ कर, ये सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे वैलिड है। इस ऑपरेशन को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, इस ऑपरेशन को बोलते हैं रिपीटेशन, इसको बोलते हैं लेंथ मेथड, जो टपल की लेंथ बताए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 53। जब की वैल्यू पेयर की बात आए तो ये सीधा का सीधा डिक्शनरी से रिलेटेड होता है। डिक्शनरी कंटेन द की वैल्यू पेयर। ठीक है, हर की के साथ उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होती है। ये डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर है हमारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में अगर बात करें तो डिक्शनरी के बारे में क्या बात सही है? क्या ऑर्डर्ड होती है? नहीं भाई, अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है, डिक्शनरी आर इम्यूटेबल, नहीं नहीं, चेंज कर सकते हो इनको। डिक्शनरी कीज मस्ट बी यूनिक, दिस इज द राइट वन हियर, की यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर की ही हमारी डुप्लीकेट होगी तो हम किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी की के साथ कौन सी वैल्यू मैच हो रही है? फिर तो सब लोग ही मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। की वैल्यू पेयर में ध्यान रखें, की वैल्यू में हमारा की जो है वो यूनिक होता है, की हमारा इम्यूटेबल होता है। बट डिक्शनरी में हम अगर कोई भी हमने कुछ भी ऐड करना है या किसी की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो सारा का सारा जो बर्डन होता है वो हमारा की ने उठाया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी को सिंपली करली ब्रेसेस से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन वन इज और ऑप्शन ए इज द राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट वे टू क्रिएट ए डिक्शनरी। देखो, यहाँ पे एक की लिखी है जो कि यूनिक है, यहाँ पे दूसरी की लिखी है दैट इज ऑल्सो यूनिक, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज द स्ट्रिंग टाइप, एंड उसको स्ट्रिंग को कोट्स में लिखा है, ये भी बात ठीक है। और एक की और एक वैल्यू पेयर के बीच में
की वैल्यू के बीच में कॉलन है, ये भी सही बात है, यहाँ पे भी की वैल्यू के बीच में कॉलन है और बाहर में इसके करली ब्रेसेस लगे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट वे है। ये तो लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दे, ये तो गलत हो गया बी वाला, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिक्शनरी की। डिक्शनरी में कौन सी की है जो कि वैलिड नहीं है? क्या इंट, फ्लोट, लिस्ट? देखो लिस्ट हमारा क्या है, म्यूटेबल है, और मैंने अभी अभी बताया कि जो कीज जो होती हैं वो डिक्शनरी की इम्यूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई C1 इज द इनवैलिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिक्शनरी की। तो वैलिड डिक्शनरी की बात करें तो इम्यूटेबल चीजें कंटेन करती हैं की। तो यहाँ पे देखते हैं जो जो इम्यूटेबल है वो वैलिड डिक्शनरी की बन सकता है। टपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, नंबर यानी कि इंट इम्यूटेबल है, तो ये सभी के सभी की बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ डू यू एक्सेस द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की इन द डिक्शनरी। बोर मत होना भाई, की के साथ जो भी एसोसिएट वैल्यू है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलो वैल्यू एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी मान लीजिए हमारी डिक्ट नाम से है, उसकी हमने जो की है वो पास कर दी, और कहाँ पास करी, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। एक तो इस वे से मिल जाएगी, दूसरा डिक्ट मेथड जो है, डिक्ट मेथड उसमें हमने कोई की दे दी, उससे भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। जो की देनी होती है ना, डिक्ट डिक्ट मेथड जो था उसमें जो की है वो स्क्वायर ब्रैकेट में देनी होती है। ठीक है, इसलिए सेकंड वाले से नहीं मिलेगी। थर्ड वाला बोल रहा है गेट की, ये वाला है मेथड, गेट की है ना, गेट की भी पर्टिकुलर वैल्यू हमें देता है उस की से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट वन है। तो ऑप्शन डी यही बोल रहा है कि ए और सी राइट है, तो डी वाले को ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगल सिंगल सही नहीं बोला जाएगा क्योंकि दो मेथड सही है, तो ए और सी इज द राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें करने में। अगर ये एक बार कर लेना, आई एम डैम श्योर पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं और तुम बहुत इम्प्रूव कर जाओगे। बस अभी थोड़े दिन का टाइम रह गया है, पूरा का पूरा फोकस के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज what happen if you try to access a key that does not exist in the dictionary। अगर की है ही नहीं, जो की हम पास करा रहे हैं वो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये की एरर दे देगा एज ए एक्सेप्शन। ठीक है, कोई चीज नहीं मिलती है तो वहां पे एरर मिलता है, अगर की नहीं है तो कौन सा एरर है, की एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द गेट मेथड इन डिक्शनरी रिटर्न। जो गेट है, अभी अभी हमने बताया गेट हमें क्या देता है, इफ की इज नॉट फाउंड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जब की नहीं मिलती है तो गेट मेथड एरर नहीं देता, एरर नहीं देता, इट विल रिटर्न द नन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे ही तो अगर हम डिक्ट के साथ जब की पास करें और हमें उस पर्टिकुलर की से रिलेटेड कुछ भी ना मिले, वो की ना मिले, तो एरर मिल जाता है हमें। ठीक है, बट यहाँ पे जो गेट है वो हमें एरर ना देके, यहाँ पे जब गेट मेथड यूज करते हैं डिक्ट की जगह, तो ये एरर ना देके नन रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच मेथड इज यूज टू ऐड ए की वैल्यू। ऐड करना है अगर की वैल्यू पेयर, तो हम यूज करते हैं डिक्ट और उस की का नाम जिसको ऐड करना है और इक्वल टू उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, ये ऐड, इंसर्ट, ये सब अपेंड, ये सब नहीं चलता है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में चलता है डिक्ट मेथड, डिक्ट और डिक्शनरी का नाम, सॉरी डिक्ट मेथड नहीं, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम, उसकी की और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच मेथड इज यूज टू रिमूव। अगर स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रिमूव यूज करेंगे, पॉप यूज करेंगे, डिलीट यूज करेंगे, डिस्कार्ड यूज करेंगे। तो ध्यान रखो कि कोई भी मतलब यूज स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे पॉप का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू रिमूव ऑल आइटम। ऑल के लिए हम क्लियर का यूज करेंगे, क्लियर का मतलब क्लियर ऑल कर देना। ठीक है,
क्लियर ऑल करना है, सारे को रिमूव करना है तो क्लियर मेथड का यूज करेंगे डिक्शनरी में। विच मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज इन डिक्शनरी, तो कीज जो मेथड है वो सारी की देता है, वैल्यूज मेथड वैल्यूज देता है, तो यहाँ पे की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है 70 तक क्वेश्चन करते हैं हम इस वाले लेक्चर में। ठीक है, विच मेथड रिटर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, वैल्यू की बात करें तो सिर्फ वैल्यूज यूज करेंगे। विच मेथड रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर की बात करें तो आइटम, हमें की वैल्यू, आइटम का मतलब होता है की वैल्यू पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच अगर फोर लूप की बात करें, डिक्शनरी में फोर लूप आइटरेट कराना है तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे आइटरेट होगा, इट आइटरेट ऑन द बेसिस ऑफ की हेल्प से हम फोर लूप चला सकते हैं डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइटरेट और की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में की वैल्यू पे आइटरेट कराते हैं तो डिक्ट डॉट आइटम्स का यूज करेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना, फोर की कॉमा वैल्यू इन ऑपरेटर का यूज करा इन डिक्ट डॉट आइटम, तो तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। इन पाइथन डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल होती है ये बात तो ठीक है, इम्यूटेबल नहीं होती है। ऑर्डर्ड सिंस पाइथन इज दिस, ऑर्डर्ड नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड ही होती है। ठीक है, लेकिन 3.7 में ऑर्डर्ड का कंसेप्ट आ गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। बट अगर पेपर में बात की जाए तो पेपर में अनऑर्डर्ड आती है और डिक्शनरीज को सिर्फ म्यूटेबल ही लिख के आना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पेपर तुम्हारा ऑप्शन ए कंसीडर करा जाएगा, बट अभी ये ऑर्डर्ड हो गई है पाइथन में जब 3.7 वर्जन की बात करें तो। होप यू गाइस लाइक दिस मैराथन क्लास, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई वांट बिफोर योर एग्जाम 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, और follow the telegram link and other the website link also I will provide in the description.